مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء نے کانگریس حکومت کی جانب سے نوٹس موصول ہونے پر کہا کہ اب کانگریس بھی بی جے پی کی زمین بیچنے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء نے یونیورسٹی کے اراضی پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش پر کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک طالب علم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے کہا ہے کہ وہ اپنے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار یونیورسٹی کے اندر چلانے کے بجائے باہر چلائیں، یونیورسٹی کو آمدنی کا ذریعہ نہ سمجھا جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے نوٹس بھیجنے کے بعد کہا ہے کہ معمول کا سروے ہے، لیکن سروے کے بہانے ہی حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں جا کر ہنگامہ برپا کیا گیا تھا۔ طالب علم نے کہا کہ یہی کام مانو اور انڈین اسکول آف بزنس میں کیا جا رہا ہے اور حکومت کا نوٹس موصول ہونے کے بعد ہی طلباء نے احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طالب علم کا کہنا تھا کہ زمین بیچنا بی جے پی کی پالیسی رہی ہے، لیکن اب کانگریس پارٹی بھی اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن اگر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی اراضی پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر احتجاج کیا جائے گا اور پورے ملک میں کانگریس پارٹی کو نقصان پہنچے گا۔ آپ ہم کو ریونیو جنریشن کی نگاہ سے دیکھنا بند کریے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ریئل اسٹیٹ کا بزنس آپ کو کرنا ہے تو کیمپسز سے باہر کرنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری چیز، آپ یہ ہم سے سوال کر کے یہ کہہ رہے ہیں، یہاں کے ٹورزم منسٹر کا بیان آیا کہ یہ ایک روٹین سروے ہے، ہم اس سے کسی طرح کا ہنگامہ نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن یہی سیم پیٹرن آپ نے HCU میں اپنایا تھا، ابھی بزنس کا ایک اسکول ہے اس میں آپ اپنا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تلنگانہ کی بنیاد جس شرط پر ہوئی تھی اور جن قربانیوں کے بعد یہ تلنگانہ بنا تھا، وہ یہ قطعی نہیں تھا کہ آپ جو ہیں اس ہندوستان کو زبانوں کی بنیاد پر بھی بانٹیں گے، ریئل اسٹیٹ کی نظروں سے بھی بانٹیں گے، ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا تو اس بنیاد پر بھی بانٹیں گے۔ اور آخری چیز یہ کہ مانو نے جب یہ نوٹس دیکھا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے گروپس کو انہوں نے یونائٹ کیا اور ایک پبلک کال دی۔ جب ہم نے پبلک کال دی تو ہم کو تھریٹ کیا گیا، ان نون نمبروں سے مجھے تھریٹس آئے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے تھریٹس آئے ہیں کہ آپ کو آگے کا کیریئر نہیں دیکھنا ہے کیا؟ آپ پی ایچ ڈی کے بعد کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیا؟ ہمیں معلوم ہے آپ کہاں رہتے ہیں۔ ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ماہ رمضان اور عید الفطر کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کی صدارت میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں آئندہ مقدس ماہ رمضان اور عید الفطر کی تیاریوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ تمام محکموں کی جانب سے مربوط انتظامات کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اجلاس کے دوران سیفٹی، سیکیورٹی، صاف صفائی، ٹریفک مینجمنٹ اور انتظامات پر بات چیت ہوئی۔ تمام شرکاء کی جانب سے تجاویزات بھی پیش کی گئی، ان کی تجاویزات کو مد نظر رکھا گیا۔ ریاستی وزیر نے تمام ضلع کلکٹرز کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تلنگانہ کے تمام اضلاع میں یکساں اقدامات کو نافذ کیا جائے تاکہ تہوار خوش اسلوبی اور پرامن طور سے منایا جا سکے۔ اجلاس میں مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر، رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی، MLC وینکٹ بالمورو، MP انل کمار یادو، ٹیمریز کے چیئرمین فہیم قریشی، اردو اکیڈمی کے صدر نشین طارق انصاری، وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کے علاوہ مختلف محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے کاکتیہ یونیورسٹی کیمپس پولیس اسٹیشن کے SI اور ان کے ڈرائیور کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق خنم کنڈا میں کاکتیہ یونیورسٹی کیمپس پولیس اسٹیشن سے وابستہ سب انسپکٹر P سری کانت نے ایک معاملے میں نوٹس جلد جاری کرنے، چارج شیٹ فائل کرنے اور ضبط کی گئی گاڑیاں اور موبائل فون واپس دینے کے لیے 15,000 روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ متاثرہ شخص کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے ACB کے عہدیداروں نے سب انسپکٹر P سری کانت اور ان کے نجی ڈرائیور نذیر کو KU جنکشن پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رقم برآمد کر لی گئی ہے اور ملزم کو ورنگل میں ACB کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔
महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने राजेंद्र नगर के आरामगढ़ चौराहे पर प्राइवेट ट्रैवल्स बसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र अपने आबाई मकामात को जाने वाले मुसाफिरों से प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों की जानिब से मनमानी और जायद किराया वसूल किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट ने अचानक तलाशी मुहिम शुरू की। हुकाम ने बताया कि प्राइवेट ट्रैवल्स माफिया मुसाफिरों का इस्तेसाल कर रहा था और इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान हैदराबाद से केरला, बेंगलोर, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश जाने वाली बसों की जांच की गई। जांच के दौरान कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाली 5 बसों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वार्ड वारी फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसविदा 12 जनवरी को जारी करने का फैसला लिया गया। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन में दर्ज सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास की सदारत स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमदनी ने की। इजलास के दौरान बल्दियात और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान और वार्ड वारी सतह पर फहरिस्त राय दहिंदगान के मुसविदों की तैयारी पर बातचीत की गई। सियासी जमातों के नुमाइंदों को ये इतला दी गई है कि रियासत के 32 अजला में 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में 366 वार्ड्स और 117 बल्दियात की 2630 वार्ड्स में इंतखाबात होंगे। तेलंगाना बल्दी कानून 2019 की दफ़ा 195 में तरमीम के बाद नए वार्ड्स कायम किए गए हैं। इजलास में वार्ड वारी फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसविदा 12 जनवरी को जारी करने का फैसला किया गया है। मराकज राय दही से मुताल्लिक़ तफसीलात की फहरिस्त अगले दिन यानी 13 जनवरी को जारी की जाएगी और उसे पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि 16 जनवरी को तस्वीर और मराकज राय दही की तफसीलात के साथ ख़तई फहरिस्त राय दहिंदगान की इशराई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने वाले टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा और डेरिक ओब्रायन समेत दीगर पार्टियों के रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर किए गए छापे के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा और डेरिक ओब्रायन समेत दीगर पार्टी के रहनुमाओं ने जुमा को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज के दौरान दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट समेत दीगर पार्टी के रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की और उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ से ज़ायद अराज़ी को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को नोटिस जारी किया गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने जुमा को इस सिलसिले में बंजारा हिल्स के नंदी नगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की। तलबा ने केटीआर को बताया कि यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ से ज़ायद अराज़ी को हासिल करने के लिए नोटिस मौसूल हुआ है। तलबा ने तशवीश ज़ाहिर की है कि इससे यूनिवर्सिटी और तलबा के मुस्तक़बिल को संगीन ख़तरात लाहक़ हो सकते हैं। केटीआर ने तलबा की बात गौर से सुनी और उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उनका कहना था कि एक तालीमी इदारे ख़ास तौर पर अक़लियती तलबा की खिदमत करने वाली यूनिवर्सिटी को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। साबिक़ वज़ीर ने इस मामले को मुनासिब फोरम्स पर उठाने और यूनिवर्सिटी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही है। यही है आपकी मोहब्बत की दुकान राहुल जी। आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। आज बच्चे रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे क्या नौबत थी? वो आते हैं यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान में 28 जो रियासत है वहां से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनकी फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा मेहनत कर रहे हैं। वो आज उनको मजबूरन आपकी हुकूमत की तरफ से जो मजबूरी यहाँ पे खड़ा किया गया, उसके जवाब में बच्चे आज बाहर आके उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं डिमांड करूंगा राहुल गांधी से, अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही में हो तो आप हुकूमत को, मरकजी हुकूमत जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनको सवाल करिए
उनको बोलिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक्सपैंड करना चाहती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन करिए। वहां के अगर सहूलत और इम्प्रूव करना है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना, तो जरूर करिए, आवाज उठाइए। वो नहीं करते हो और यहां पे आके कहते हो कि अनयूज्ड लैंड है इसलिए वापस लेंगे। ये लैंड अनयूज्ड नहीं है, ये लैंड है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूनिवर्सिटी की। आज पूरे हिंदुस्तान में एक इकलौती यूनिवर्सिटी। स्पेशल क्राइम टीम ने चीनी मांझा रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया। बड़ी मकदार में चीनी मांझा जब्त कर लिया गया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर चीनी मांझे के इस्तेमाल, खरीद फरोख्त और नकलो हमल पर सख्त पाबंदी आयद है। हैदराबाद सिटी पुलिस, रचाकोंडा, साइबराबाद और मलकाजगिरी पुलिस कड़ी निगरानी कर रही है कि चीनी मांझे का न तो इस्तेमाल किया जाए और न ही उसे फरोख्त किया जाए। इसके बावजूद भी चीनी मांझे को फरोख्त किया जा रहा है। स्पेशल क्राइम टीम हैदराबाद ने ममनुआ चीनी मांझे के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई और 155 चीनी मांझा के बॉबिन्स जब्त किए। तमाम मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि चीनी मांझा इंसानों और परिंदों के लिए इंतहाई खतरनाक है और पतंगबाजी के लिए चीनी मांझे का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया गया है। चीनी मांझे की फरोख्त करने और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह जारी किया गया है। हैदराबाद सिटी पुलिस सख्त निगरानी कर रही है। नलगुंडा जिले के मिरियालागुड़ा में एक डीसीएम और सीमेंट टैंकर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 अफराद मौके पर हलाक हुए जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। ज़रा ने बताया कि जुमा की सुबह नलगुंडा जिले के मिरियालागुड़ा शहर के ईदुलगुड़ा चौराहे के करीब एक डीसीएम जो हैदराबाद से गुंटूर जा रही थी, रेडीमिक्स सीमेंट टैंकर से टकरा गई। डीसीएम में मौजूद 3 मजदूर हादसे में मौके पर ही हलाक हो गए जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर मिरियालागुड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत तशवीशनाक है। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। डीसीएम जो सड़क के पार पड़ा था उसे क्रेन की मदद से हटाया गया। मिरियालागुड़ा 1 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। साबिक वजीर हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आला के पास बेरोजगार नौजवानों से मुलाकात करने का वक्त नहीं है। साबिक वजीर व सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने जुमा को वजीर आला रेवंत रेड्डी को अशोकनगर सेंट्रल लाइब्रेरी जाने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान बेरोजगार नौजवानों से 1 साल में 2 लाख मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया गया था, लेकिन अब वजीर आला उन नौजवानों को अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के पास सिनेमा घर का इफ्तिताह करने का वक्त है, लेकिन बेरोजगारों से मुलाकात का वक्त नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया है कि रेवंत रेड्डी को अशोकनगर जाना चाहिए और बेरोजगारों से बातचीत करनी चाहिए। हरीश राव ने कहा कि अगर वजीर आला ने बेरोजगारों से मुलाकात नहीं की तो ये उन्हें धोखा देने के बराबर होगा। उनका कहना था कि जॉब कैलेंडर को बेरोजगार कैलेंडर बना दिया गया है। सरकारी मुलाजिमतों से मुताल्लिक़ कोई इतला नहीं दी जा रही है। उन्होंने वजीर IT डी श्रीधर बाबू को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान बेरोजगारों को कायल किया गया था, लेकिन बदले में उन्हें अब धोखा मिला है। तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वार्ड वारी फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसविदा 12 जनवरी को जारी करने का फैसला लिया गया। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन में दर्ज सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास की सदारत स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमदनी ने की। इजलास के दौरान बल्दियात और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान और वार्ड वारी सतह पर फहरिस्त राय दहिंदगान के मुसविदों की तैयारी पर बातचीत की गई। सियासी जमातों के नुमाइंदों को ये इतला दी गई है कि रियासत के 32 अजला में 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में 366 वार्ड्स और
17 बल्दियात की 2630 वार्ड्स में इंतखाबात होंगे। तेलंगाना बल्दी कानून 2019 की दफ़ा 195 में तरमीम के बाद नए वार्ड्स कायम किए गए हैं। इजलास में वार्ड वारी फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसव्विदा 12 जनवरी को जारी करने का फैसला किया गया है। मराकज राय दही से मुताल्लिक़ तफसीलात की फहरिस्त अगले दिन यानी 13 जनवरी को जारी की जाएगी और उसे पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि 16 जनवरी को तस्वीर और मराकज राय दही की तफसीलात के साथ ख़तई फहरिस्त राय दहिंदगान की इशराई की जाएगी। टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कंदी मंडल के इर्दानूर गांव में चौदहमा जतरा में शिरकत की। जराये ने बताया कि टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कंदी मंडल के इर्दानूर गांव में चौदहमा जतरा में शिरकत की और ख़ास पूजा की। इस मौके पर जतरा की तारीख बयान की गई और गो फनकारों ने रिवायती गीत भी गाए। दरियासना जग्गा रेड्डी ने इर्दानूर की पहाड़ियों पर भी देवी देवताओं के दर्शन करते हुए आवाम की खुशहाली और सेहत के लिए दुआ की। कांग्रेस संगारेड्डी हल्के इंतखाब के इंचार्ज जूलाकंती अंजनीलो, ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट राघव गौड़, इर्दानूर सरपंच पी ज्योति दुर्गा प्रसाद, कांग्रेस रहनुमा मधु व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। मलकाजगिरी पुलिस ने 1039 मसरूखा और गुमशुदा मोबाइल फोन्स मालिकीन के हवाले कर दिए। शहरियों को अपने फ़ोन की हिफाजत करने का मशवरा दिया गया है। मलकाजगिरी पुलिस ने 2 करोड़ 8 लाख रुपये मालियती मसरूखा और गुमशुदा 1039 मोबाइल फोन्स तलाश कर उन्हें मालिकीन के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम ने बताया कि CEIR के जरिए मोबाइल फोन्स का सुराग लगाया गया है। IT सेल की मदद से CCS LB नगर मलकाजगिरी की खुसूसी टीमों ने 6 महीनों के अंदर कार्रवाई की और तकरीबन 1039 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। बताया जाता है कि ताहाल 4733 गुमशुदा और मसरूखा मोबाइल फोन्स बाजियाब किए जा चुके हैं। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अपने फ़ोन की हिफाजत करें क्योंकि इसमें कीमती मालूमात और डेटा होता है। फ़ोन गुम जाने पर या फिर सरखा हो जाने पर करीबी पुलिस स्टेशन में इतला देने की भी ख्वाहिश की गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के तामीराती कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों को तामीराती कामों में तेजी लाने की हिदायत जारी की है। हुस्नाबाद हल्के के कोहेड़ा मंडल के तंगलापल्ली गांव के मसाफात में बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के तामीराती काम जारी है। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने जुमा को स्कूल के तामीराती कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को तामीराती कामों में तेजी लाने की हिदायत जारी की। उन्होंने स्कूल की इमारत के इर्द गिर्द दीवारें तामीर करने और सड़कों की तामीर करने की भी हिदायत जारी की। आपको बता दें कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल 200 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ अराजी पर तामीर किया जा रहा है। तजवीज़ पेश की गई है कि ज़िला कलेक्टर को स्कूल के तामीराती कामों की रोज़ाना की पेशरफ्त की बाकायदगी से निगरानी करनी चाहिए। संगारेड्डी जिले के कोल्लूर में पुलिस ने अराजी पर कब्जे की कोशिश को नाकाम बनाते हुए तकरीबन 32 अफराद बशमूल 20 खवातीन को हिरासत में ले लिया। ज़राए ने बताया कि कोल्लूर में 9 एकड़ निजी अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की गई। रातों रात 200 से ज़ायद अफराद DCM ट्रक्स और ऑटो रिक्शा में कंटेनर बोट्स और रेलिंग पाइप लेकर उस अराजी पर पहुंचे। JCB की मदद से कंपाउंड की दीवारें गिराई गई और वहां पर रेलिंग लगा दी गई। बताया जाता है कि बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड्स का अगवा कर उन्हें नारसिंगी के करीब छोड़ दिया। एक और चौकीदार और उसकी अहलिया पर हमला करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। सर्वे नंबर 192A A9 में जी माधवी और भगवत रेड्डी की 5 एकड़ 12 गुंटे अराजी और श्रीनिवास की 4 एकड़ अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी गार्ड से इतला मिलने पर सुपरवाइजर ने पुलिस को इतला दी। कोल्लूर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अराजी पर
قبضہ کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے تقریباً 20 خواتین اور 12 مردوں کو حراست میں لے لیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،